नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 26। श्री शुक उवाच इति आदिस्यामरगणान् प्रजापते पतिर्विभुः आस्यावस्य च महीं गिर्भिः स्वधाम परमं ययो। Sukadeva Goswami continued, after thus advising the demigods and pacifying Mother Earth, the very powerful Lord Brahma, who is the master of all other Prajapatis and is therefore known as Prajapati Pati, returned to his own abode, Brahmaloka. यहाँ पर तात्पर्य नहीं है, इसलिए हम दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। सूरसेनो यदुपतिर मथुराम आवसन पुरीम मथुरान शूरसेनांश विषयान बुभुजे पुरा। Formerly, Surasen, the chief of the Yadu dynasty, had gone to live in the city of Mathura. There he enjoyed the places known as Mathura and Surasena. इसमें भी तात्पर्य नहीं है, आगे का श्लोक हम देंगे। राजधानी ततः सा भूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। Since that time, the city of Mathura had been the capital of all the kings of the Yadu dynasty. The city and district of Mathura are very intimately connected with Krishna, for Lord Krishna lives there eternally. Purport: it is understood that Mathura city is the transcendental abode of Lord Krishna. It is not an ordinary material city, for it is eternally connected with the Supreme Personality of Godhead. Vrindavan is within the jurisdiction of Mathura, and it still continues to exist. Because Mathura and Vrindavan are intimately connected with Krishna eternally, it is said that Lord Krishna never leaves Vrindavan. Vrindavanam parityaja padam ekam nagacchati. At present, the place known as Vrindavan in the district of Mathura continues its position as a transcendental place, and certainly anyone who goes there becomes transcendently purified. Navadip Dham is also intimately connected with Brajbhumi. Srila Narottam Das Thakur therefore says, Sri Gauda Mandala Bhumi Yeba Jane Chintamani Ta Rahe Brajbhume Vas. Brajbhumi refers to Mathura Vrindavan, and God Mandal Bhumi includes Navadvipa. These two places are non-different. Therefore, anyone living in Navadvip, knowing Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu to be the same personality, lives in Brajbhumi, Mathura Vrindavan. The Lord has made it convenient for the conditioned soul to live in Mathura, Vrindavan and Navadvipa, and thus be directly connected with the Supreme Personality of Godhead. Simply by living in these places, one can immediately come in contact with the Lord. There are many devotees who vow never to leave Vrindavan and Mathura. This is undoubtedly a good vow. But if one leaves Vrindavan, Mathura or Navadvip Dham for the service of the Lord, he is not disconnected from the Supreme Personality of Godhead. At any rate, we must understand the transcendental importance of Mathura, Vrindavan and Navadvip Dham. Anyone who executes devotional service in these places
certainly goes back home, back to Godhead, after giving up this body. Thus, the words Mathura Bhagwan Yatra Niyama Sannihito Hari are particularly important. A devotee should fully utilize this instruction to the best of his ability. Whenever the Supreme Personality of Lord, whenever the Supreme Lord personally appears, he appears in Mathura because of his intimate connection with this place. Therefore, although Mathura and Vrindavan are situated on this planet Earth, they are transcendental abode of the Lord. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Utapadakamalam Sri Gurun Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitanscha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. राजधानी ततः साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नियम नित्यम सन्निहितो हरि. At that time, the city of Mathura had been the capital of all the kings of the Yadu dynasty. The city and district of Mathura are very intimately connected with Krishna, for Lord Krishna lives there eternally. तो यहाँ अब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को इस प्रकार संबोधित करके अपने धाम को चले गए, और यहाँ सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के लीला के बारे में बताने जा रहे हैं। और इस प्रकार श्री भगवान के अवतरण के पूर्व भगवान के धाम के भगवान के दिव्य धाम का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तो भगवान जहाँ अवतरित होने वाले हैं उस अबोर्ड, वो जो लोक है, वो जो स्थान है, दिव्य स्थान है, उसकी चर्चा उसका व्याख्यान यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पहले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। तो भगवान जो हैं वो नित्य मथुरा वृंदावन में अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। यह जो मथुरा वृंदावन है भगवान श्री कृष्ण का धाम है, भगवान श्री कृष्ण का अबोर्ड है, और इसलिए भगवान नित्य ही मथुरा वृंदावन में निवास करते हैं। और ऐसा शास्त्र बताता है कि भगवान जो है वो वृंदावन को कभी भी त्यागते नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान जो है वो वृंदावन और मथुरा को कभी भी नहीं त्यागते हैं। तो कृष्ण जो है वो नित्य ही अपने धाम में निवास करते हैं। और इस प्रकार जब हम इस विषय को देखते हैं कि भगवान वहाँ अवतरित होने वाले हैं, भगवान का वहाँ अवतरण होने वाला है, तो जब भगवान जो है वहाँ नित्य निवास कर रहे हैं तो उसके भगवान का किस प्रकार से वहाँ अवतरण होने वाला है। तो भगवान की इस प्रकार की दिव्य लीला है कि भगवान वहाँ नित्य निवास करते हैं, परंतु जब समय आता है, जब भगवान के अवतरण होने का समय आता है, उस समय जो अवतार जो हैं, भगवान के जो एक्सपेंशन है, भगवान के जो विस्तारित रूप हैं, जो वैकुंठ से तथा श्वेत द्वीप से प्रकट होते हैं, वह भगवान के दिव्य देह में मिल जाते हैं। और इस प्रकार भगवान जो हैं वो बद्ध जीवों के लिए उनके आंखों के समक्ष वो प्रकट होते हैं, और थोड़े समय तक भगवान जो हैं
उनका प्रकट लीला वहाँ पर प्रस्तुत होता है, जबकि भगवान इस संसार के जो बद्ध जीव हैं उनको अपना दर्शन देते हैं, और बद्ध जीवों के जो समक्ष जो है भगवान प्रकट होते हैं, अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। और उसके बाद जब उनकी लीला पूर्ण हो जाती है, उसके बाद भगवान के जो अवतार जो प्रकट हुए थे, वो विभिन्न भगवान के अवतार जो भगवान के शरीर में एकात्मा हो जाते हैं, वो भगवान के विभिन्न जो अवतार हैं, भगवान के एक्सपेंशंस हैं, वो फिर अपने अपने धाम को वापस लौट जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने धाम में जो भी कि नित्य निवास करते हैं, परंतु कुछ समय के लिए वो संसार के जीवों को अपना दर्शन प्रदान करते हैं और अपनी दिव्य लीलाओं को प्रकट करके बद्ध जीवों के हृदय को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जिससे कि बद्ध जीव इस संसार में 3 तापों से तप रहा है, जिसका जीवन, उसे इच्छा प्रकट हो सके, वह अपने संवैधानिक स्थिति को समझ सके कि वह भगवान का दास है, वह स्वामी नहीं है, और इस प्रकार वह चेष्टा कर सके कि वो कृष्ण को प्राप्त करने की और कृष्ण के धाम में वापस जाने की वो चेष्टा कर सके। तो यह जो है भगवान का नित्य धाम है। और इस प्रकार भगवान जो है अपने धाम में जब प्रकट होते हैं, जब अवतरित होते हैं, भगवान का जब अवतरण होता है, तो वह बद्ध जीवों को, इस संसार के बद्ध जीवों को अपना दर्शन प्रदान करते हैं, और दर्शन प्रदान करके वो उनके हृदय को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। तो भगवान का जो भगवान की कृपा है कि जो भी कि वो अपने धाम में नित्य निवास कर रहे हैं, परंतु कुछ समय तक वो अपने अंतरंग लीलाओं को वहाँ पर प्रकट करते हैं, और अपनी लीलाओं को प्रकट करके वो जीवों को अपने हृदय की तरफ जीवों के हृदय को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। और भगवान के इन्हीं प्राकट्य लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवतम में और विभिन्न वैदिक ग्रंथों में उसका उल्लेख है, उसका वर्णन है। तो भगवान का जो धाम है, वहाँ जीव को जाना चाहिए, बद्ध जीव को, और वहाँ निवास करना चाहिए। और भगवान का जो धाम है, भगवान के धाम में निवास करना, मथुरा वास जो है, वह भक्ति की 5 जो प्रक्रिया है उसमें से एक प्रक्रिया उसे बताया गया है। भक्ति की 5 प्रक्रिया है, जिसमें कि बताया गया है कि हमें हरि भक्तों के, भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करना, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान के पवित्र ग्रंथ जो है जिसमें भगवान की लीलाओं का उल्लेख है, विशेषकर श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता, इसका अध्ययन करना, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना, तथा भगवान के धाम में निवास करना, मथुरा वास। तो यह जो भक्ति की 5 प्रमुख प्रक्रिया है, और इन 5 प्रमुख प्रक्रियाओं में जो मथुरा वास है, भगवान के धाम में निवास करना, वह भी एक प्रक्रिया है। तो भगवान जो है वो अपने धाम में नित्य निवास करते हैं। जो भी कि उनका प्राकट्य लीला समाप्त हो जाता है, तो उनका प्राकट्य लीला समाप्त होने के उपरांत भी भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को त्याग कर नहीं जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन को त्याग कर कहीं अन्यत्र नहीं जाते हैं। तो जब हम भगवान के धाम में हम जाते हैं, तो वहां पर जो है हम तो भगवान को लीला करते हुए नहीं पाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। तो क्योंकि हम बद्ध जीव हैं और हमारी आंखें जो हैं वो भगवान के जो माया शक्ति है उससे आवृत्त हो गई है। तो भगवान के माया शक्ति से आवृत्त होने के कारण हम भगवान के दिव्य धाम को, भगवान के नित्य जो प्राकट लीला है उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भगवान का जो धाम है वहाँ पर भगवान की लीलाएं जो हैं वो नित्य चल रही हैं। भगवान जो हैं उनका धाम जो है वो नित्य है, वह भौतिक परिस्थिति से कभी भी प्रभावित नहीं होता है, और वह भगवान का धाम जो है वो नित्य प्रकट रहता है, और अपने पूरे ग्लोरी के साथ, अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ भगवान का जो धाम है वो प्रकट रहता है। जैसे कि ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम का बहुत सुंदर वर्णन ब्रह्मा जी ने किया है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष
लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान के धाम को बताया गया है चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष। भगवान का जो धाम है वह चिंतामणि का बना हुआ है और सुकल्प वृक्ष है, वहां पर सुकल्प वृक्ष है। लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम, भगवान जो है वो गौओं को वहां पालते हैं, वह जो है गायें जो है सुरभि गायें वहां पर रहती हैं। और लक्ष्मी सहस्र सत्सम ब्रह्म सेव्यमानम, भगवान जो है वो लाखों हजारों लाखों अनगिनत लक्ष्मियों के द्वारा वहां पर सेव्य हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहती हैं। तो यह भगवान के धाम का सुंदर वर्णन है। तो भगवान का जो चिंतामणि धाम है वह बद्ध जीवों को वह दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी आंखें जो हैं उस प्रकार से अनुकूल नहीं है दिव्य धाम को देखने के लिए। हमारी आंखें और हमारी इच्छाएं जो हैं उससे ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति वही चीज देखता है जो उसका मन में इच्छा होती है। जो जिस प्रकार की इच्छा करता है उन्हीं चीजों को वो देखता है। जैसे हम संसार को जो अपने आंख के चश्मे के अनुसार देखते हैं। यदि हम आंख में लाल चश्मा लगाए होंगे तो हमें संसार का प्रत्येक वस्तु लाल ही दिखाई पड़ती है, और जब हम हरा चश्मा लगा लेते हैं तो प्रत्येक वस्तु हरी दिखाई पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि जो संसार है वो लाल है या हरा है, परंतु हमने एक ऐसा चश्मा डाल रखा है जिससे कि हम चीजों को देखते हैं। तो हमारी बद्ध अवस्था जो है, जीव की बद्ध अवस्था, वो उसकी आंखों के ऊपर लेयर है, उसकी आंखों के ऊपर पर्दा है, और जीव जो है अपनी बद्ध अवस्था के अनुसार इस संसार को देखता है और भगवान के धाम को भी देखता है। इसलिए भगवान का धाम में भगवान की जो नित्य भगवान की दिव्य लीलाएं हैं उसे दिखाई नहीं पड़ती हैं, उसका प्राकट्य उसके समक्ष नहीं होता है। परंतु जब कोई व्यक्ति भगवान के धाम में जाता है और वहां पर वह प्रार्थना करता है और भगवान से प्रार्थना करता है और भक्ति करने का अभ्यास करता है, साधना करने का अभ्यास करता है, तो वह धाम जो है वह धीरे धीरे बद्ध जीव के हृदय में प्रकट होता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जिस प्रकार जो व्यक्ति भगवान के पास जाता है, कृष्ण के पास जाता है, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, कृष्ण भी उसी प्रकार से उसके साथ संबंध रखते हैं। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो इस प्रकार जीव चूंकि भगवान का अंश है, मामेव अंशो जीव लोके जीव भूतः सनातन, इसलिए कोई भी जीव क्षण भर भी भगवान से अलग नहीं है। वह भगवान से अलग नहीं क्योंकि भगवान का ही अंश है, परंतु वह भगवान से विमुख हो गया है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वह भगवान से अलग हो गया है। तो जो जीव जिस प्रकार वो इच्छा करता है भगवान के से संबंध रखने की इच्छा करता है, उसी प्रकार से भगवान उसे अपने धाम को, अपने लीलाओं, भगवान का नाम रूप गुण लीला जो उसी प्रकार से रिवील होता है, उसका प्राकट्य होता है। तो जब कोई साधक भक्त भगवान के दिव्य धाम में जाकर और वह प्रार्थना करता है, भगवान से को समझने की प्रार्थना करता है, भगवान को देखने के लिए प्रार्थना करता है, भगवान के स्थिति को और अपनी स्थिति को रियलाइज करने का, उसको साक्षात्कार करने के लिए वो प्रार्थना करता है और ध्यान पूर्वक वो भक्ति करता है, साधना करता है, तो ये धाम जो है वह उस साधक भक्त को ये धाम जो है वो रिवील करता है, धाम का प्राकट्य होता है। तो धाम को वस्तुतः हम इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमें कृष्ण से प्रेम नहीं है। हमें जो प्रेम है वह संसार के वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं। हमारी बद्ध अवस्था के कारण हम जो हैं वो इस संसार में अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपने प्रेम को हम दर्शाते हैं। आप जैसे हम जो है इंद्रिय भोग करते हैं और इंद्रिय भोग में लिप्त रहकर हम संसार में सुख या आनंद उठाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। तो जो इंद्रिय भोग है वह भगवान के दिव्य धाम को प्राकट नहीं कर सकता है, और जो इंद्रिय भोग है वह जीव को और ज्यादा आवृत्त करता है, जिससे कि हम भगवान के धाम को नहीं देख पाते हैं, हम उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो भगवान को दर्शन करने के लिए जो विधि है उसे शास्त्र में बताया गया है कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति
यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान का जो धाम है उसको दर्शन करने के लिए कहा गया है कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन। जब हमारी आंखें कृष्ण प्रेम के अंजन से लगी हुई हैं, जब हमारी आंखों में कृष्ण प्रेम का अंजन लगा हुआ है, तब संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, तब हम भगवान के रूप को देख सकते हैं, सभी जगहों पर देख सकते हैं। कृष्ण किस प्रकार से जो है भगवान की स्थिति प्रत्येक जीव में है, प्रत्येक वस्तु में है, उसे हम देख सकते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कृष्ण जो है उनकी स्थिति जो है या प्रत्यक्ष रूप से स्वयं कृष्ण या कृष्ण जो है उनकी जो है भगवान को हम देख सकते हैं। जैसे कि यदि जो भक्त को भगवान के प्रेम का अंजन लगा हुआ है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, भक्ति का जो है डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा, प्रेममयी भक्तिमयी सेवा का जो अंजन लगा हुआ है, उससे वो भगवान को देख सकता है, भगवान को रियलाइज कर सकता है। तो भगवान को देखना जो है वो भगवान को हम भगवान के नाम रूप गुण लीला के माध्यम से देख सकते हैं। जब भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान के नाम का रसास्वादन करके भगवान को का साक्षात्कार हम कर सकते हैं। जब भगवान के कथाओं का हम श्रवण करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, उसको हम कीर्तन करते हैं, तो इस प्रकार भगवान के जो गुण रूप लीला है उसका हम गुणगान करके भगवान की अनुभूति को कर सकते हैं, भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। और उसी प्रकार इस संसार में प्रत्येक जगह में, प्रत्येक जीव में और प्रत्येक वस्तु, चूंकि वो भगवान से उत्पन्न है, वो कृष्ण से उत्पन्न है, इसलिए ये जगत जो है चूंकि कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण से उसकी उत्पत्ति है, इसलिए हम कृष्ण के शक्ति के माध्यम से हम कृष्ण की स्थिति को समझ सकते हैं, कृष्ण की स्थिति को जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे उदाहरणतः एक बीज है, तो बीज को हम जब भूमि में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो बीज अंकुरता है, उस अंकुरित होता है और वहां से पौधा निकलता है और धीरे धीरे जब उसको हम सींचते हैं तो वो वृक्ष बनता है। तो कौन उसे शक्ति प्रदान करता है? बीज को कौन शक्ति प्रदान करता है जिससे कि बीज जो है वह एक वृक्ष का रूप लेता है, और एक बीज जो है वह वृक्ष का रूप लेता है, फल देता है, और उसमें भी बीज होते हैं, और इस प्रकार वह किस प्रकार से वृक्ष का वापस रूप लेता है। तो यह शक्ति जो है यह कृष्ण की शक्ति है। भगवान ने उस बीज में उस शक्ति को डाली। अंदांतरस्त परमानुचयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान की स्थिति प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अणु में भी है। कृष्ण के ये जो दृश्य जगत है जिसे हम देखते हैं, यह भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति के बिना किसी भी चीज का स्थिति नहीं हो सकता है, कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकता है, कोई भी चीज प्रकट नहीं हो सकता है, और किसी भी चीज की स्थिति नहीं हो सकती है। तो हम जो भी दृश्य जगत में देखते हैं उसे कोई जो मनुष्य है उसकी शक्ति नहीं है कि उसके वो प्रकट कर सके। यह शक्ति जो है ये भगवान के द्वारा दिया जाता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खै पौरुषम ऋषु। तो भगवान कहते हैं कि रसो हम अप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ, प्रभास्मि सूर्यो, तो सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो सूर्य और चंद्रमा ये कहाँ से प्रकट हुए हैं? ये भगवान की शक्ति है, भगवान से जो है वो प्रकट हुए हैं। सूर्य और चंद्रमा को कोई जीव नहीं बना सकता है। कोई जो मर्त जीव है वह सूर्य और चंद्रमा के बारे में विवेचन करता है, समझने का प्रयास करता है, परंतु वो समझ नहीं पाता है। बहुत सारे थियरी हैं कि जो है लोग जो हैं वो जो साइंटिस्ट हैं वो चांद पर गए हैं और चांद पर जाने गए हैं, और चांद के बारे में वो विभिन्न प्रकार की उनका मत है। एक मत है कि वो चांद पर गए हैं तो वहां पर चांद पर हवा नहीं है, परंतु जो व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब चांद पर जाकर झंडा फहराता तो झंडा जो है हिलता रहता है। तो एक वैज्ञानिक कहता है कि नहीं, हम चांद पर गए हैं क्योंकि उसमें फिल्म बनाया गया है, उसको वीडियो शूटिंग किया गया है। और दूसरा वैज्ञानिक कहता है कि जब चांद पे आप कहते हो हवा नहीं है तो वहां पर हिल कैसे रहा है, उसका झंडा कैसे हिल रहा है। तो इस प्रकार अलग अलग थियरी है। हम चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं,
क्योंकि यह भगवान की शक्ति है और जीव की बुद्धि जो है वो अल्प है, वह भगवान की स्थिति को या उनकी प्रकृति की स्थिति को वह विचार करके नहीं समझ सकता है, क्योंकि यह जो भगवान का विषय है वो अचिंत्य विषय है। भगवान जो है वो अपौरुषेय हैं। तो कृष्ण को जब जानना है, कृष्ण को जानना है या कृष्ण की शक्तियों को जानना है, तो हम शास्त्रों के द्वारा हम कृष्ण को जान सकते हैं, कृष्ण की शक्तियों को जान सकते हैं। और इसलिए शास्त्र को, वेदों को माता कहा गया है और गुरु जो होते हैं वो पिता होते हैं। तो यह जो माता और पिता है वो हमें कृष्ण का ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार शास्त्र जो है वह माता है और गुरु जो है पिता है, और इस प्रकार जो बद्ध जीव को ये जो माता पिता शास्त्र और गुरु के माध्यम से हमें कृष्ण का ज्ञान प्राप्त होता है। और जिस ज्ञान को शास्त्रों में निहित किया गया है, जिस ज्ञान को शास्त्रों में डाला गया है, बताया गया है, उसे हम गुरु के माध्यम से, परंपरा से हम जब उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं तो हम भगवान के स्थिति को समझ पाते हैं। तो कृष्ण जो है उनकी स्थिति हमारे चारों ओर है। हम दृश्य जगत जो है, यहाँ प्रत्येक कण कण में भगवान का उपस्थिति है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रत्येक कण में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वनस्पति में, प्रत्येक पदार्थ में भगवान की उपस्थिति है। भगवान की स्थिति के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व संभव नहीं है। तो इसे हम शास्त्र के माध्यम से इसे हम समझ सकते हैं। तो ये भगवान की जो स्थिति है, भगवान का जो साक्षात्कार है, इसे सरलता से समझना भगवान के धाम में होता है। जब हम भगवान के धाम में जाते हैं और वहां पर जब हम साधना करते हैं तो भगवान की स्थिति को हम आसानी से समझ पाते हैं, क्योंकि कृष्ण का वहां पर विशेष भगवान जो है वहां पर नित्य ही निवास करते हैं। इसलिए भगवान से जीव का जो संबंध है वह उसमें उसे बनाने में सुलभता होती है। आसानी से जीव भगवान को वहां समझ पाता है। इसलिए यह भक्ति का एक मार्ग दिया गया है कि हमें जाकर मथुरावास, भगवान के धाम में जाकर निवास करना चाहिए। क्योंकि हम भगवान के धाम में जाकर निवास करेंगे तो भगवान के स्थिति को हम सरलता से समझ सकते हैं। जो साधक भक्तगण हैं, जब हम वृंदावन, मथुरा, मायापुर, नवदीप धाम, जगन्नाथपुरी धाम, इन भगवान के स्थानों में हम जाते हैं, जब भगवान के धाम में जाते हैं और वहां पर हम जब भक्ति करते हैं तो हम विशेष भगवान के उपस्थिति की अनुभूति हमें होती है। ये अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि भगवान वहां नित्य निवास कर रहे हैं और उनका जो कृपा है वो आसानी से जीव को उपलब्ध है। इसलिए प्रत्येक साधक भक्त को चाहिए कि अपने जीवन में कुछ समय वहां जाएं और जो गुरु ने हमें, सदगुरु ने जो हमें भक्ति का जो मार्ग दिया है, साधना भक्ति का मार्ग दिया है, उसका अभ्यास हम भगवान के धाम में करें और ध्यान पूर्वक करें। जब हम ध्यान पूर्वक भगवान का ध्यान, साधना भक्ति को भगवान श्री कृष्ण के धाम में एग्जीक्यूट करते हैं, वहां पर जब हम उसका साधना करते हैं तो हम आसानी से भगवान को समझ पाते हैं। जैसा कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के धाम में निवास करता है और भगवान के निवास करके, धाम में निवास करके अपनी साधना भक्ति को करता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है अपने जीवन के अंत में। तो इस प्रकार भगवान के धाम में जाना और सेवा करना, यह जो है भक्ति का एक प्रमुख प्रक्रिया है। और प्रत्येक साधक भक्त को चाहिए कि भगवान के धाम में जाएं, वहां भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें और भगवान के पवित्र नामों का जप करें, भगवान के कथाओं का श्रवण करें और इस प्रकार से अपने जीवन को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का व्याख्या, उनकी महिमा का गुणगान करने में अपने जीवन को, अपनी चेतना को वहां पर सन्निहित करें, अपनी चेतना को लगाएं, अपनी चेतना को निमग्न करें भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को श्रवण करने में और कीर्तन करने में। इस प्रकार का कार्य करने से जीव सुलभता से, आसानी से भगवत धाम जा सकता है, भगवत धाम की उसे प्राप्ति हो सकती है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में बता रहे हैं कि यह बहुत अच्छा है कि कोई व्यक्ति भगवान के धाम में निवास करता है और वहां पर जाकर साधना करता है, परंतु यदि कोई भक्त या कोई व्यक्ति भगवान के कार्य को करने के लिए कृष्ण के धाम को त्याग कर बाहर जाता है कृष्ण के कार्य को करने के लिए, तो वह भी नित्य वृंदावन में निवास करता है।
वो भगवान के धाम से वो कभी अलग नहीं होता है। इस बात का स्वयं उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में निवास कर रहे थे संन्यास लेने के पश्चात, और वो राधा दामोदर में रह रहे थे, नित्य राधा दामोदर का दर्शन कर रहे थे, और श्रील प्रभुपाद जो है वहाँ पर श्रीमद् भागवतम को लिख रहे थे, अपने भक्ति वेदांत तात्पर्य को श्रील प्रभुपाद दे रहे थे। और उनके स्वप्न में उनके गुरु महाराज आए और अपने गुरु महाराज की आज्ञा को सिरोधार करते हुए, अपने गुरु महाराज की आज्ञा को अपने हृदय में धारण करते हुए उन्होंने भारत भूमि, विशेषकर वृंदावन धाम को, ब्रज भूमि को उन्होंने त्यागा और उग्र भूमि को गए। वो भारत भूमि को छोड़कर मथुरा ब्रज के पवित्र धाम को छोड़कर भारत भूमि को त्याग कर वो उग्र स्थान में गए, अमेरिका गए, और वहां पर उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हुए, अपने गुरु महाराज से कभी अलग नहीं हुए, जो भी कि वो धाम को छोड़कर, भारत को छोड़कर वो अमेरिका गए थे, क्योंकि वो कृष्ण के कार्य को करने के लिए गए थे। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ पर साधक भक्तों को यह संदेश दे रहे हैं कि जो भी भक्त भगवान के धाम को छोड़कर भगवान के सेवा के लिए वो दूसरी जगहों पर जाता है, वह भी नित्य ही धाम में निवास करता है। तो यह जो है भगवान के धाम का जो है महात्म्य है कि कोई भी व्यक्ति जब भगवान के धाम में निवास करता है तो वह आसानी से जो है उसके लिए भक्ति करना सुलभ होता है, सरल होता है, और भगवान का धाम उसकी भक्ति में सहायक होता है, उसे कृष्ण भावना का साक्षात्कार करने में। और वह जो है कृष्ण को प्राप्त होता है अपने जीवन में, इस जीवन को त्यागने के उपरांत वो कृष्ण को प्राप्त करता है। परंतु यह भी महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति कृष्ण का सेवा करने के लिए वह कृष्ण को के धाम को छोड़कर बाहर जाता है, वह भी कृष्ण से कभी भी अलग नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने बहुत सारे भक्तों को जो है वृंदावन में रह रहे थे, उनको दूसरी जगहों पर भेजा प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद के एक भक्त हैं भूरिजन प्रभु, तो भूरिजन प्रभु को श्रील प्रभुपाद ने भेजा था हांगकांग प्रचार करने के लिए, और श्रील प्रभुपाद ने उनको कहा था कि यदि आप वहां जाओगे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करोगे तो आप कृष्ण के नाम से समस्त जो शहर है उसको आप प्यूरिफाई कर सकते हो, उसको पवित्र कर सकते हो। भगवान का नाम जो है इतना शक्तिशाली है। और वहां पर भूरिजन प्रभु जब गए थे तो भूरिजन प्रभु जो वहां जब हांगकांग में गए तो उनके लिए रहने के लिए कोई स्थान नहीं था, और वो जो है ऐसा स्थान है जहां पर चाइनीज लोग रहते हैं और वहां पर वैदिक सभ्यता नहीं है, तो कोई व्यक्ति जो है साधु की स्थिति को नहीं समझ सकता है। भारत में यदि कोई साधु रहता है तो उस भारत चूंकि धर्म की भूमि है, इसलिए यहाँ पर साधु को सम्मान मिलता है, और साधु के जीवन की जो अल्प आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति भी होती है। लोग जो है दान में देते हैं साधु को, कुछ नहीं है तो रोटी देते हैं, कुछ सब्जी देते हैं, और जो कुछ वस्त्र है वो साधु को प्राप्त होता है। तो यहाँ भारत भूमि में जो साधु है अपना सरल जीवन अपनी अल्प न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुलभता से कर सकता है। परंतु जो चाइना या हांगकांग में जब भूरिजन प्रभु गए थे तो वहां पर उनको रेंट देने के लिए उनके पास लक्ष्मी नहीं होती थी, और वहां पर श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि आप प्रचार करो, तो उनको स्वयं का निर्वाह करने के लिए भी लक्ष्मी नहीं थी, और वहां पर वो भगवान के नाम का प्रचार कर रहे थे, परंतु वो कृष्ण को समर्पित थे, इसलिए कृष्ण उनकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करते थे। जब एक बार कई वर्ष पूर्व जब भूरिजन प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे तो उनसे भक्तों ने निवेदन किया था कि वो अपने हांगकांग की लीला को बताएं। तो बता रहे थे जब वो हांगकांग में निवास कर रहे थे तो वो अकेले भक्त थे, वो एक अकेले भक्त हांगकांग में निवास कर रहे थे और वहां भक्ति कर रहे थे और भक्ति का प्रचार कर रहे थे। और उस समय जगत तारिणी माता जी जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक फिल्म स्टार जो थी फिल्म स्टार थी, वो श्रील प्रभुपाद जी से मिली थी अमेरिका में, और अमेरिका से श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा था कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाओ, वहाँ हांगकांग जाओ और वहाँ एक मेरा भक्त है उसके साथ विवाह करो। और इस प्रकार भूरिजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी वहाँ हांगकांग में निवास कर रहे थे और वो वहाँ से प्रचार कर रहे थे। तो भूरिजन प्रभु बताते हैं कि
प्रत्येक महीने का जो रेंट था उसको देने के लिए उनके पास लक्ष्मी नहीं थी, परंतु महीने में कोई ना कोई व्यक्ति आता था और उनको उतना लक्ष्मी डोनेशन दे जाता था जिससे कि वो रेंट भर सके। कोई व्यक्ति आता था, जो भी कि वहां पर इस प्रकार का संस्कृति नहीं है, परंतु कोई व्यक्ति आता था, उनको कुछ चावल, कुछ दूध, इस प्रकार से दान दे जाता था और वहां पर रहकर भूरिजन प्रभु जगत तारिणी माता जी उन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। तो यह जो है एक उदाहरण है कि किस प्रकार से जो भक्त भगवान की सेवा के लिए, भगवान के कार्य के लिए, भगवान के धाम को छोड़कर जाते हैं, तो वह भी धाम से कभी भी अलग नहीं होते, क्योंकि वो कृष्ण के कार्य करने के लिए कृष्ण के धाम को उन्होंने छोड़ा है। इसलिए कृष्ण नित्य ही उनकी रक्षा करते हैं, उनका जीवन यापन करते हैं, उनके प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। भगवान की कृपा से जो है हरिनाम जो है वहां पर फैलता है। तो भगवान का धाम जो है वो बहुत ही शक्तिशाली, आध्यात्मिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली है, जहां पर कि जीव निवास करता है और अपने आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त करता है। परंतु भगवान के धाम में निवास करने के समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई अपराध ना करें। जो भक्ति है, भक्ति जो है वो दो धारी तलवार के समान है। जैसे जो तलवार है, जैसे या हम दूसरा उदाहरण लें, जैसे ब्लेड है, ब्लेड, तो ब्लेड बहुत ही धार वाला होता है। उससे हम शेविंग करते हैं तो क्या होता है, हम अच्छे से शेविंग कर सकते हैं। परंतु यदि हम सावधानी पूर्वक शेविंग नहीं करेंगे तो हम उतनी आसानी से अपने आप को काट भी सकते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान का धाम है, वहां पर भक्ति करना तो सुलभ है, परंतु यदि हम वहां अपराध करेंगे तो हमें उसी प्रकार से दोष भी लगता है, हमें उसका रिएक्शन को भी भोगना पड़ता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान के धाम में जाएं तो हम कोई अपराध ना करें। कई बार लोग जो हैं वो भगवान के धाम में जाकर निवास करते हैं, परंतु उनकी बद्ध अवस्था है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य से वो पीड़ित हैं और उनका हेतु जो है वह वहां पर जाकर अपना जीवन निर्वाह करना होता है। उनका जीवन का हेतु वहां भक्ति करके भगवत की प्राप्ति नहीं होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो वापस उन्हीं इंद्रिय तृप्ति के विषय वस्तु में वो लिप्त हो जाते हैं। और कई बार लोग धाम में निवास करते हैं, परंतु वहां पर जाकर भी चूंकि वो शुद्ध नहीं है और शुद्ध होने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं, गुरु का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है कि वहां पर जाकर भी वो पर स्त्री संग करने लगते हैं और बहुत ही जो है निकृष्ट पापों में अपने आप को नियोजित कर लेते हैं, क्योंकि उनके हृदय में इंद्रिय तृप्ति की भावना इतनी प्रबल है, उसे त्याग नहीं पाते हैं। और उसका कारण क्या होता है कि भगवान का धाम का में रहने का उनको फल तो मिलता है, परंतु उन्हें उसी प्रकार से वहां कष्ट भी भोगना पड़ता है। हम धाम में जाते हैं तो कभी कभी हम देखते हैं कि कोई कुत्ते, बिल्ली हैं और उनके सर में, एक बार मैं वहां, मुझे याद है कि जब मैं 98 में पहली बार मैं गोकुल महावन गया था, तो जो 84 खंबा है वहां पर मैंने एक कुत्ते को देखा था। वो कुत्ता जो है वो अधमरा सा पड़ा हुआ था और उसके जो सर में कीड़े जो हैं वो घर बनाए हुए थे, कीड़े उसके खा रहे थे और दूर से कीड़े जो थे वो दिखाई पड़ रहा था कि कीड़े जो हैं उसके ब्रेन को, उसके सर को खा रहे हैं। और कुत्ते का शरीर जो था वो बहुत ही दुर्बल और एकदम स्किनी जो था, उसके शरीर में सिर्फ हाड़ और मांस नहीं थे, उसके हड्डी और चमड़ा था और इस प्रकार कुत्ता जो अधमरा पड़ा हुआ था उसके सर को कीड़े खा रहे थे। तो मैंने जब भक्तों से पूछा कि इसकी ऐसी दशा क्यों है, तो वरिष्ठ भक्तों ने मुझे बताया कि जब हम धाम में निवास करते हैं और अपराध करते हैं, पाप करते हैं, तो ऐसी हमारी दशा होती है कि हमें वहां रहकर अपने पापों को, फल को वहां भोगना पड़ता है। और परंतु जो भगवान का धाम है चूंकि पवित्र है, इसलिए हम उस धाम के जो रज है और जो मिट्टी है उस धाम, उसको हम लेट कर धीरे धीरे अपने चित्त को शुद्ध करते हैं और अपने जो, यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उस पापों को भी भोगता है और इस प्रकार धीरे धीरे वो शुद्ध होता है। तो यदि हम भगवान के धाम में जाते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई अपराध ना करें, किसी भी जीव के प्रति कोई भी अपराध ना करें, जिससे कि हमें धाम का जो लाभ है वो प्राप्त हो सके और हम धाम में रहकर धाम अपराध नहीं करें, जिसका कि रिएक्शन भी, उसका जो परिणाम है वह भी गंभीर होता है। इसलिए जो भक्तगण हैं, जो
जो महाराज है राधानाथ महाराज कहते हैं कि हमें वृंदावन धाम जाएं तो हमें 3 दिन 5 दिन से ज्यादा वहां निवास नहीं करना चाहिए। जितने समय के लिए जाएं, यदि हमें कोई सेवा है तो हम सेवा करें, परंतु चूंकि हम बद्ध हैं, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम नित्य 24 घंटे भगवान का स्मरण कर सकें। इसलिए क्या होगा कि जो हमारे जो बद्ध अवस्था है वो बाहर आएगी और हम वहां पर भी जाकर जो है इंद्रिय तृप्ति करने का हमारी प्रवृत्ति होगी। तो धाम में रहकर हमें पूर्णतः फोकस करना चाहिए भगवान के नाम रूप गुण लीला के ऊपर, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति प्रदान करें, हमें सेवा का अवसर प्रदान करें, और जिससे कि हम अपने बद्ध अवस्था से निकलकर, बद्ध अवस्था से छूटकर हम भगवान के श्री चरणों को प्राप्त कर सकें। इसलिए हमारी जितनी शक्ति है, जितना हम भगवान के धाम में भगवान के नाम रूप गुण लीला में अपने आप को निमग्न कर सकते हैं, उतने ही दिन हमें वहां पर निवास करना चाहिए। और उसके उपरांत हमें जो सेवा गुरु ने दिया है उस सेवा का अभ्यास करना, जो सेवा को करना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे उस सेवा को करके पवित्र हो जाएंगे, और जब हम पवित्र हो जाएंगे तो हम भगवान के धाम के अधिकारी बनेंगे। तो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।